Hello dear students, this is your tutor Jyoti Sani and today we will read chapter number 8 named Silk Road in the syllabus of class 11th. This chapter is written by Nick Middleton, and in this chapter the narrator, the writer, he expresses his journey to Mount Kailash. According to Hinduism and Buddhism, Mansarovar journey, the journey to Mansarovar is a symbol of love which we have towards God. So the writer, he wanted to do something, he wanted to work on his positive energy. That's why he visited this place, and in this chapter he describes about the same journey. So he starts his journey from a place named Ravu. When he started his journey, he expressed, "A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes." So when he said his goodbyes, when he just left the place where he was living, a flawless half moon floated. Flawless means clear. Half moon means अर्ध जो चंद्रमा होता है. It was floating in a perfect blue sky. बहुत ही सुंदर नीले आकाश में ये बह रहा था, because it was early in the morning. Then he left that place. Actually, he started his journey from a place named Ragu. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountains tops with a rose-tinted blush. Extended banks, जो बढ़े हुए थे, किनारे, बादलों के जो किनारे थे, which were looking like French loaves, डबल रोटी जैसे लग रहे थे. They were just glowing pink as the sun, and it was the time when the sun emerged to splash the distant mountain tops, क्योंकि सन जो है उसकी रेस जो है वो दूर जो माउंटेन्स थे उनके शिखरों पर पड़ रही थी, and it was looking like rose tinted blush. लालिमा छाई हुई थी उनके ऊपर. अर्ली इन द मॉर्निंग का समय था, इसीलिए ये जो सन रेज थी वो लाल कलर की सुनहरी दिखाई दे रही थी. Now that we were leaving Ravu, so this is a place from where he started his journey. जब हमने रावू छोड़ा, Lahmo said she wanted to give me a farewell. Lahmo was a lady who lived in Ravu, and she helped the narrator. She served him. She said that she wanted to give him a farewell present. As the narrator, he was leaving that place. So Lahmo, who lived in Ravu, she wanted to present him a farewell present. One evening I had told her through Daniel. So Daniel is the mate of the narrator. Daniel will go with him. एक शाम, and Daniel is a Tibetan. So through Daniel, Lahmo told the narrator on one evening that he was heading towards Mount Kailash to complete the Korah, and she said that I ought to get some warmer clothes. जैसा कि नरेटर ने लामो को बताया कि वो माउंट कैलाश जा रहा है, तो लामो ने उसको बताया कि उसे वहाँ पर कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeve sheepskin coats. Ducking back means coming back. So when the narrator, he returned to her tent, because she was running a tent where the narrator stayed, she must carrying one of the long sleeved sheepskin. Sheepskin coats होते हैं जो sheep की skin से बने हुए जो coats होते हैं, जो कि बहुत ही warm होते हैं. So she presented with a sheepskin coat. एक sheepskin coat लेके आई थी वो लंबी बाजू वाला, जब narrator वापस उसके टेंट में आया. That all the men wore. ऐसा वहाँ के सभी लोग पहनते थे, आदमी लोग. Satan sized me up as we clambered into his car. So Satan is the driver of the narrator, in whose car he would go to Mount Kailash. So Satan will leave him in Lhasa. Lhasa is also a place on the route. Satan ने मुझे size up किया, यानी कि he looked at me when we clambered into, clamber होता चढ़ जाना, बैठ जाना, into his car. जब हम उसकी कार में चढ़े तो Satan ने मुझे देखा, मेरे ऊपर नज़र डाली,
Ah, yes, he declared. Drogba, sir. And he knew that it was the narrator was dressed up like Drogbas. So Drogbas जो होते हैं वो टिबेटिन शेफर्ड्स को कहा जाता है, तो टिबेटिन भाषा में, तो इसलिए उसने कहा कि he was dressed like a Drogba. We took a shortcut to get off the Changtang. कहते हमने चांगतांग, जैसा कि नरेटर है, ही स्टार्टेड ही जर्नी फ्रॉम रावू, सो ही टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगतांग. चांगतांग से वहाँ से गुजरने के लिए उसने क्या लिया, एक शॉर्टकट रास्ता लिया. चेतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट. चेतन एक ऐसे रूट को जानता था. चेतन वाज द ड्राइवर ऑफ द नरेटर, जो कि उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ लेके जाएगा, उस रास्ते पर, उस डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश. और ये जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट सीधा कहाँ पहुँचता है, माउंट कैलाश की तरफ जाता है. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स पासिस. और इसके रास्ते में कई ऊंचे पहाड़ी दर्रे पड़ेंगे, ऐसा चेतन ने नरेटर को पहले ही बता दिया था. बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस. लेकिन चेतन ने उनको विश्वास दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी. इफ देर इज नो स्नो, अगर वहाँ बर्फ नहीं हुई तो. वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा वट वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्नो. नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर. देन चेतन डिक्लेयर कि जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक ये बात क्लियर नहीं है कि कितनी बर्फ वहाँ होगी. From the gently rolling hills of Ravush, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. तो जब नरेटर रावू की पहाड़ियों से, जो कि कैसी थी, घुमावदार थी, वहाँ से आगे चले, नरेटर एंड द ड्राइवर एंड डैनियल ऑल्सो. सो फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, यानी कि उन घुमावदार पहाड़ियों से, जो कि रावू की जो पहाड़ियाँ थी घुमावदार, वहाँ से वो जो शॉर्टकट रास्ता था वो उन्हें कहाँ ले गया, अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, यानी कि खुले बड़े प्लेन इलाकों में जो मैदान थे, विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गिजेल्स. और वहाँ पर और कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थे, कुछ गिजेल्स थे, यानी कि जो चिंकारा हिरण थे. these gazelles, they have strips on their head. जो उनका जो सींग होते हैं ना, उनके ऊपर एक तरीके का स्ट्रिप्ड कलर होता है, उनका धारीदार होते हैं उनके सींग. That would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. तो जैसा कि कुछ चिंकारा हिरण देखे नरेटर ने और उनके साथियों ने, दैट वुड लुक अप, जो कि देखते थे, वो हिरण, वो चिंकारा हिरण क्या करते थे, देख रहे थे, फ्रॉम निबलिंग द एरिड पेस्चर्स. निबलिंग होता है बाइट ऑफ करना, चबाना. द एरिड पेस्चर्स यानी कि सूखा चारा. तो जैसा कि वो जो हिरण थे वो अपने सूखे चारे को चबा रहे थे, तो उन्होंने उस चारे को चबाते हुए ही नरेटर को देखा. व्हेन द नरेटर ही वेंट अक्रॉस देयर एंड फ्राउंड बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड. और उनकी तरफ फ्राउन किया, त्योरियां चढ़ाकर देखा उन हिरणों ने, इससे पहले कि वो कूदते हुए, बाउंड करते हुए वॉइड में चले जाते, यानी कि शून्यता में चले जाते, जहाँ से वो दिखाई देने बंद हो गए. फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी. उसके आगे बढ़ने पर जो प्लेन एरियाज थे वो और ज़्यादा ग्रासी की कंपैरिजन में स्टोनी होते चले गए, यानी कि अब वो समतल नहीं रह गए, पथरीले होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया पहाड़ी इलाके में. अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू. तब उन्हें एक बड़ा गधों का वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधों का झुंड दिखाई दिया, काफ़ी बड़ा. चेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड. ऐसा चेतन ने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, बता दिया था, बहुत पहले ही, इससे पहले कि वो अपीयर होते, उससे पहले ही चेतन ने बता दिया था कि वो वहाँ पर दूर जंगली गधे का झुंड है. क्यांग, ही सेड. एक्चुअली दे आर कॉल्ड क्यांग इन टिबेटियन लैंग्वेज. तो उसने बता दिया था देर वर क्यांग. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार पॉल ऑफ डस्ट. पॉल ऑफ डस्ट
जो दूर जो आवरण दिखाई दे रहा था धूल मिट्टी का, उस धूल मिट्टी के आवरण को पॉइंट आउट करते हुए सेटन ने पहले ही क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि वहां दूर क्यांग है। When we drew near, I could see the herd galloping en masse. और जब हम नजदीक गए तो मैं देख सकता था उन्हें जंप करते हुए, गैलोप करते हुए, एन मैस काफी बड़ी संख्या में। मैस मीन्स in a big quantity or number. Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Wheeling, they were just running on wheels. ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर काट रहे हैं। Turning in tight formation, एकदम तेज कट लेते हुए, घूमते हुए। ऐसा लग रहा था मानो कि वो किसी पर्टिकुलर मैन्यूवर यानी कि टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन सम प्री डिटरमिंड कोर्स, जैसे कि पहले से ही उनका जो मार्ग है वो डिटरमिंड है, फिक्स है, जैसे उन्हें उसी रास्ते पर जाना है। तो पर्टिकुलरली एक फॉर्मेशन के साथ, एक घुमाव के साथ, एक फ्लो के साथ वो दौड़ रहे थे। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, उनके दौड़ने से प्लम्स ऑफ डस्ट यानी कि जो धूल के जो बादल थे, बिलोड बनने शुरू हो गए, इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, उस साफ सुथरी हवा में, क्योंकि वहां पे जो विंड थी, जहां वो एटमॉस्फेयर था, दैट वाज सो प्योर। सो द नरेटर एंड his mate Daniel, accompanied with the driver Setan, they just went forward. As he started to push up once more from the rocky wilderness, जैसा कि अब वो दोबारा से जो है पहाड़ी रास्तों पर आ गए हैं, तो उन पहाड़ी रास्तों ने उनको पुश करना शुरू कर दिया रॉकी विल्डरनेस, ऐसे पथरीले रास्तों पर जो कि वीरान थे। वी पास सोलिटरी ड्रॉकबाज व्हेन द नरेटर एंड हिज मेट्स दे वेंट फर्दर, देन दे पास सोलिटरी ड्रॉकबाज, सोलिटरी मीन्स लोनली, ड्रॉकबाज द शेपर्ड्स, तिब्बती जो गडरी होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, चलाते हैं, हाँकते हैं। तो जब वो वहाँ से आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ लोनली ड्रॉकबाज यानी कि देवर सिंगल, कोई जो शेपर्ड थे वहाँ से गुजर रहे थे, उनको क्रॉस किया। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, बड़े प्यार से, बड़े पोलाइटली वो अपने फ्लॉक्स को यानी कि ग्रुप ऑफ शीप को हाँक रहे थे। समटाइम्स मैन, समटाइम्स वीमेन, कभी कभी ये जो ड्रॉकबाज होते थे वो आदमी लोग होते थे, कभी औरतें। These well-wrapped figures would pause and stare at our car. तो ये जो अच्छे से जो ये लोग थे, ओवर वेल रैप्ड, अच्छे से जो कवर्ड थे, उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे गर्म, दे वुड पॉज, हमें देखकर यानी कि नरेटर को देखकर वो रुक जाते, एंड स्टेयर एट अवर कार, एंड दे स्टेयर्ड एट देयर कार, occasionally waving as we passed, तो they waved with their hands occasionally, बीच बीच में। When the track took us close to their animals, or sometimes when the track it took them to close to their animals, the sheep would take evasive action. तो जब भी उनके जानवरों के नज़दीक चला जाता, उनकी जो कार थी रास्ते की वजह से, जैसे कि वो आगे बढ़ते तो उनका, अगर वो बिल्कुल उनकी कार एनिमल्स के बिल्कुल नज़दीक हो जाती तो वो जो शीप थी वो काफ़ी एक्टिव एक्शन में आ जाती, घबरा जाती। Veering away from the speeding wheel, they started running away from the speeding wheel. स्पीड वाले उस व्हीकल से, उनकी कार से वो जो शीप थी वो दौड़ना शुरू हो जाती थी। We passed nomads, dark tents, passed in splendid isolation. अब हमने क्या किया, नरेटर ने, उन्होंने नोमैड्स के डार्क टेंट्स को क्रॉस किया। वो नोमैड्स दे वर जिप्सीज, जो बंजारे लोग होते हैं, जो कभी जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके टेंट्स जो कि पिच किए हुए थे, गड़े हुए थे स्प्लेंडिड आइसोलेशन में, अद्भुत लोनलीनेस में, खालीपन में, उजाड़ में, बिल्कुल खाली जगह जहाँ कोई नहीं था, वहाँ पे उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अबाउट द टिबेटन मैस्टिफ, दे वर वाइल्ड डॉग इन तिब्बत। तो नॉर्मली बड़े काले तिब्बती जो कुत्ते थे वहाँ पर तैनात रहते थे, स्टैंडिंग गार्ड, खड़े रहते थे गार्ड के रूप में। These beasts would cock their great big head when they became aware of our approach and fix us in their sights.
तो ये जो वाइल्ड बीस्ट थे, ये बड़े जो जानवर थे, जो डॉग्स थे, दे कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, वो मूव करते, शेक करते अपने बड़े बड़े उन सिरों को हिलाते। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ अवर अप्रोच, जब उन्हें लगता कि हम उनके नज़दीक चले गए, हमारे पहुंचने का उनको आभास हो जाता, तो बड़े अवेयर हो जाते थे, एक्टिव हो जाते थे। एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, तो अपनी नज़रों में हमें कैद कर लेते, भर लेते, हमें देखते घूर के। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और अगर हम और नज़दीक जाते जाते जैसे, दे वुड एक्सप्लोर इनटू एक्शन, तो फूट पड़ते, एकदम एक्शन में आ जाते। स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, तेज स्पीड से हमारी तरफ बढ़ते हुए, लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन, जैसे गन से एक बुलेट निकलती है तेज गति से, इस तरह से। एंड नियरली एज फास्ट, या करीब उतनी स्पीड से, बहुत तेज। ओके स्टूडेंट्स, we will continue the same chapter in next video. Till then, thank you so much.